دیتے ہیں. لٹرلی عمران خان نے سیلوٹ مار کر بتایا کہ یہاں پر بیٹھے سیلوٹ مار کے ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں اور یہی میرا بنیادی اختلاف ہے. ایبسولیوٹلی ناٹ یا ایبسولیوٹلی یس دونوں ہی نہیں ہونے چاہیے. ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کمپیوٹر نے اس معاملے کے اندر کوئی ایک اچھا رول پلے نہیں کیا خان صاحب کے ساتھ یا پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ اس وقت. یہ ضرور ہے کہ خان صاحب کو کچھ گلے شکوے ہیں اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں ہو سکتا امریکہ کو بھی خان صاحب کے ساتھ کوئی ایک گلے شکوے ہو سکتے ہیں. جہاں پہ کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اس کو دونوں طرف سے مسائل کے نظر ثانی کی جائے, دیکھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل. آج تاریخ ہے 7 مئی اور دن ہے ہفتے کا. رجیم چینج آپریشن کے خلاف ایک اور دن اور عمران خان کا ایک اور خطاب. اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے ورچوئل ایڈریس کیا ہے. یو اے ای, قطر, مسقط, عمان, بحرین, سعودی عرب, برطانیہ, امریکہ اور بہت سارے ممالک میں, اٹلی سمیت کئی ممالک میں لوگوں نے اس کو براہ راست سنا, دیکھا اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کی براہ راست نشریات کی گئیں. لیکن اس انٹرویو کے بالکل آغاز میں عمران خان نے امریکہ سے شروع کیا اور امریکہ کی ایک بار پھر ایسی تیسی پھیر دی. اور جو ان کے مختصر سا کامنٹ تھا امریکہ کو لے کر اور جو بھی اب تک پالیسی رہی ہے امریکنز کی, اس کو لے کر ان کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں. میں اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ عین ان لمحات میں جب بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں اور پیغامات بھی بھجوائے جا رہے ہیں کہ کول ڈاؤن, معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے, یہ پیغامات آ رہے ہیں عمران خان تک کہ معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے ہمیں. اور عمران خان سے ہو رہی ہیں کچھ اہم ملاقاتیں اور جو اس وقت امریکن پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن, ان کے بہت ہی قریبی سمجھے جانے والے امریکن ڈیموکریٹ طاہر جاوید ان دنوں پاکستان پہنچے ہوئے ہیں. یہ مختصر سے چند دنوں کے اندر اندر ان کا دوسرا دورہ پاکستان ہے. کچھ دنوں پہلے وہ امریکن کانگریس وومن جو الہان عمر ہیں ان کے ساتھ پاکستان آئے, عمران خان سے ملاقات کی اور چلے گئے. اب دوبارہ آئے ہیں پاکستان اور ان کی گزشتہ شام عمران خان سے ایک دوسری ملاقات ہوئی اور میں بڑے وثوق سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے ہی بات چیت ہوئی اور یہ میسج دیا گیا خان صاحب کو کہ چیزوں کو ہینڈل کریں, ابھی اتنا زیادہ اگریسو ہو کر امریکہ کے خلاف بات چیت شاید نہیں آپ کو کرنی چاہیے. اور ساتھ میں یہ بھی پیغام دیا گیا جو سازش تھی اصل وہ امریکہ کی طرف سے نہیں تھی, وہ روس کی طرف سے تھی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے روس کی طرف سے یہ سازش کیسے تھی, تو یہی جاننے کے لیے میں نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ دوبارہ سے عمران خان سے ملے ہیں تو پاک امریکہ تعلقات کو لے کے آپ کی آخر کیا بات چیت ہو رہی ہے. عمران خان ایٹ دا مومنٹ امریکہ کو لے کر کیا سوچ رہے ہیں اور آپ نے کیا عمران خان کو تجاویز دی ہیں تعلقات میں بہتری کے لیے. کیا یہ جو حالیہ اس وقت صورتحال ہو رہی ہے جلسے جلوسوں میں جس طرح عمران خان امریکنز پالیسی پر تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں, کیا یہ پاکستان کے تعلقات خراب کر رہی ہے یا نہیں. اور دوسرا یہ کہ کیا عمران خان خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہونا ضروری ہے. اور ایک بات بڑی اہم ہے, طاہر جاوید یہ سمجھتے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ اور ایبسلیوٹلی یس یہ دونوں ہی نہیں ہونے چاہیے. کیوں نہیں ہونے چاہیے, کیا وجہ ہے, باہر بیٹھے ہوئے امریکنز پاکستانی جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اور عمران خان کو کیا مزید مشورے دیے گئے ہیں, یہ ہم انہی کی زبانی جانیں گے. لیکن اس سے پہلے میں چھوٹا سا کامنٹ کر دوں. عمران خان کی جو حالیہ آج کی تقریر ہے اس پہ انہوں نے آغاز میں ہی امریکہ کے حوالے سے بات چیت کی. میں اس کا ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ چند گھنٹے پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی جان ہاتھ ہلکا رکھیں, ہم بھی کوشش کرتے ہیں معاملات کو ٹھیک کرنے کی. لیکن اس ملاقات کے ختم ہوتے ہی عمران خان کا جو پہلا ایڈریس ہے اس کی جو پہلی لائنز ہے وہ امریکہ کے حوالے سے شروع ہوتی ہیں. اور عمران خان نے کہا کہ بدقسمتی سے امریکنز کو یہ عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے حکم جاری کرتے ہیں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ سیلوٹ مار کے ان کی ہر خواہش پوری کر دیتے ہیں. لٹرلی عمران خان نے سیلوٹ مار کر بتایا کہ یہاں پر بیٹھے سیلوٹ مار کے ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں اور یہی میرا بنیادی اختلاف ہے. انہوں نے آج بھی بڑے واضح انداز میں کہا کہ میں اینٹی امریکن نہیں ہوں. اس سے پہلے جو امریکن پریزیڈنٹ تھے ڈونلڈ ٹرمپ, ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے ٹرمز تھے, بڑے اچھے ریلیشن تھے. لیکن جو حالیہ ایڈمنسٹریشن ہے یعنی صدر جو بائیڈن کی, ان کی پالیسیز کے ساتھ انہیں اختلاف ہے. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے اڈے مانگے تھے لیکن میں نے چونکہ دینے نہیں تھے اس لیے معاملات بگڑنے لگے. یہاں پر ایک کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے جو اب لوگ آہستہ آہستہ پوچھنے لگ گئے ہیں کہ جب عمران خان نے
एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था, ये वाजे कर दिया था कि वो अड्डे नहीं देंगे, तो फिर अमेरिका किसके साथ डील कर रहा था? ये जो मुआहदे बड़े करीब पहुंच चुके थे, ये किससे हो रहे थे? कौन कर रहा था जो बड़े करीब पहुंच चुके थे मुआहदे और किसी भी वक्त मुकम्मल हो सकते थे? लेकिन इमरान खान के सख्त मौक़िफ़ ने सारे किए किराए पर उस वक्त पानी फेर दिया और यहाँ से हुआ रजीम चेंज ऑपरेशन का वो सिलसिला शुरू, जब अमेरिका ने पाकिस्तान के मुकामी सहूलतकारों को साथ मिलाया, जिसको इमरान खान मीर जाफ़र और मीर सादक कहते हैं कि उनको साथ मिलाकर इन्होंने ये पूरा रजीम चेंज का ऑपरेशन शुरू किया। खैर, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात किस नहज पर जाएंगे, पाकिस्तान किस हद तक इफ़ेक्ट हो सकता है और वहाँ पर रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो क्या सोचते हैं, इन सारे मामलात पर जो खुलकर बातचीत हुई है वो ताहिर जावेद से, ये सदर जो बाइडन के भी बहुत करीबी समझे जाते हैं और एट द सेम टाइम इमरान खान के भी बड़ा करीब है। तो मुश्तरका दोस्त इस वक्त क्या करना चाहता है, क्या कर सकता है और क्या सोच रहा है, ये आपके जानने के लिए है। तो ये इंटरव्यू आप पूरा देखिए ताकि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चल सके। देखिए, आप हमेशा से जानते हैं कि मेरे लिए तो हमेशा एक बड़ा अच्छा ये सब्जेक्ट रहा है कि दोनों मुल्कों को रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। ये एक नेचुरल अलायंस है इन दोनों मुल्कों का। फिर सबसे ज़्यादा ट्रेड पार्टनर अमेरिका है पाकिस्तान का, तो ये एक लामहला एक अच्छे रिलेशनशिप यानी दोनों की एक ज़रूरत है। तो एब्सोल्युटली नॉट या एब्सोल्युटली यस दोनों ही नहीं होने चाहिए। आपको हर मामले के अंदर दोनों, कोई भी मुल्क जो है ना वो अपनी अच्छाई बुराई देखता है, अपने फ़ायदे को देखता है उसके अंदर। तो जो आज की ना है वो कल की यस और आज की यस कल की ना हो सकती है। तो आपको जो फर्म डिसीजन विद के आपने उसके ऊपर यानी इस तरह की जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स हैं, ये डिप्लोमेसी के लिए कभी भी अच्छी नहीं हुई। बेशक अभी इमरान खान साहब का एक जो भी कह लें कि नाराज़गी का इजहार भी कर रहे हैं, इलेक्शन मोड में चले गए हैं, वहाँ पे स्लोगन्स भी चल रहे हैं। उसके बावजूद इस हकीकत से खान साहब इनकार नहीं करते कि अमेरिका के साथ अभी भी फ्यूचर में भी अच्छे रिलेशनशिप रखना पाकिस्तान के लिए बेहतर है। इमरान खान जलसों में भी जिक्र कर रहे हैं कि वो एंटी अमेरिका नहीं है, ना एंटी इंडियन है, ना एंटी अमेरिका है। आप इस सिलसिले में कोई बैक एंड पे रहते हुए कोई किरदार अदा करना चाहते हैं या कर सकते हैं, जिससे जो गलत फहमियाँ हैं इमरान खान और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान उन्हें दूर किया जा सके? देखिए, जैसे खान साहब ने उतरने के बाद अवाम के अंदर चले गए और वहाँ पे जाकर के अपनी केस को रख रहे हैं, इसी तरह इनको चाहिए कि जो इनके काउंटर पार्ट्स वहाँ पे हैं, इलेक्टेड ऑफिशियल्स अमेरिका के अंदर, कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, उनके साथ अपनी बातचीत को कंटिन्यू रखें। अगर कोई इनको गिला शिकवा है या इनको कोई और इशू है तो उनके साथ पुट अप करें, और वो बड़े एक बेहतर तरीके से वहाँ पे इनसे भी समझ सकते हैं, दूसरों से भी। तो अब हम एक ऐसी एज के अंदर रहते हैं जहाँ पे आप कम्युनिकेशन पे टेबल पे बैठ के अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। खान साहब को भी मैं समझता हूँ कि ये एहसास है कि जो रशिया का जो दौरा था उसके ऑप्टिक्स इतने अच्छे नहीं थे, उसकी जो दुनिया को एक मैसेज जो गया था, क्योंकि बेसिकली उसी दिन वो अटैक हो रहा है जिस दिन ये वहाँ पे लैंड कर रहे हैं ना। तो मेरी तो ज़ाती राय में रशिया ने ये चीज़ एक मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान को गलत पोर्ट्रे करने के लिए ये सारा, देखिए ना, जब खान साहब वहाँ पे गए थे तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि वहाँ पे वार के लिए, प्रिवेंशन के लिए कोई कन्वर्सेशन करने के लिए जाएंगे, और इनसे मुलाकात से पहले वार शुरू हो जाती है। तो बेसिकली अब ये मिसाल है कि ये भी तो हो सकता था ना, ये बगैर मिले वापस ही आ जाते, और मैं समझता हूँ आ भी जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि पहले से प्लान था, इनके और भी टॉपिक्स थे वार से हट के, ये रुक गए उधर। अच्छा, फिर उसके बाद जब एक जॉइंट स्टेटमेंट होती है वो भी नहीं हुई। तो मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि प्यूटन ने इस मामले के अंदर कोई एक अच्छा रोल प्ले नहीं किया खान साहब के साथ या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ उस वक्त। अच्छा, अब ये जो हम रोज़ाना साजिश की बात करते हैं, तो ये साजिश है जो वहाँ पे रशिया में प्यूटन ने की है कि एक ऐसी पिक्चर बाहर दुनिया को भेजी गई कि जैसे ये वहाँ पे जंग रुकवाने नहीं करवाने जा रहे थे। फिर जॉइंट स्टेटमेंट अगर देते तो शायद उसमें इमरान खान साहब ये बोल देते कि मैं तो इस पर्पज़ के लिए आया था, लेकिन ये बात नहीं हो सकी और उससे पहले ये हो गया, तो उन्होंने इस चीज़ का मौका भी नहीं दिया इनको। तो मैं समझता हूँ कि उसमें वहाँ पे जो एक पिक्चर जो रशिया की तरफ से अननेसेसरीली पेंट की गई वो भी गलत थी। तो ये सर्कमस्टांसेस को उसके पूरे एक
पर्सपेक्टिव्स को मिला करके जब देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये जहाँ पे हम खड़े हैं क्यों खड़े हैं। ताहिर जावेद साहब, आप हालिया अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े करीब से जानते हैं, बड़ा क्लोज आपका उनके साथ इंटरेक्शन है। आपको लगता है कि ये जो डैमेज इस वक्त हो रहा है ये रिपेयरेबल है या डैमेज रिपेयर हो सकता है? और इस सारे सिनेरियो को देखते हुए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त क्या सोच रही है? देखिए, पाकिस्तान के साथ अमेरिका का जो रिलेशनशिप है उसमें कोई गैप नहीं है, कम्युनिकेशन के अंदर कोई गैप नहीं है। हमारे एम्बेसडर उधर है, उनके एम्बेसडर भी कंफर्म हो चुके हैं, आजकल में आने वाले हैं यहाँ पे। बड़े अरसे के बाद जब अमेरिकन एम्बेसडर यहाँ पे आके अपना चार्ज संभालेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये जो रिलेशनशिप है ये पहले से बेहतर जगह पे चले जाएगा ना। अभी तक तो ये काफ़ी देर से एम्बेसडर तो यहाँ मौजूद ही नहीं थे, वो चार्ज था किसी के पास। तो अमेरिका पाकिस्तान रिलेशनशिप के अंदर कोई आप ये नहीं समझें कि कोई गैप आया है। ये ज़रूर है कि खान साहब को कुछ गिले शिकवे हैं, और ये भी मैं समझता हूँ हो सकता है अमेरिका को भी खान साहब के साथ कोई एक गिले शिकवे हो सकते हैं। तो इसलिए ये एक इसको आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में नहीं देखें। मैं इसको जो देखता हूँ कि जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो दोनों तरफ से देखें। अमेरिका, रशिया या चाइना या जो भी आपके अपने ताल्लुकात बाकी मुल्कों के साथ हैं, मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन 72-74 ईयर का एक रिलेशनशिप है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने, अमेरिका ने, दोनों ने बहुत सारे रिसोर्सेज और यानी टाइम लगाया हुआ है और बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। आपके पास आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आपकी जो फ़ौज है, उसके बाद जो इक्विपमेंट है, वो मेजॉरिटी ऑफ देम इक्विपमेंट जो है वो बड़े अरसे दराज से वो अमेरिकन इक्विपमेंट हैं। आपके फ़ौजियों की ट्रेनिंग अमेरिका में होती रही है। तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप पाकिस्तान चाहने के बावजूद अमेरिका से दूर नहीं हो सकता। और दूसरी ये हकीकत है कि अमेरिका एक सुपर पावर है और दुनिया के अंदर उसका एक असर रसूख है। आप अमेरिका को एक कंट्री के हिसाब से भी नहीं कर सकते। जब आप वहाँ पे एक कंट्री समझ के उसके साथ रिलेशनशिप में थोड़ा आगे पीछे जाएंगे तो आपको 40 और कंट्रीज़ हैं उसके साथ रिलेशनशिप की जो एक शिफ्ट है वो चेंज हो सकती है। फिर IMF के हेल्प के बगैर पाकिस्तान के जो बजट जो है वो नहीं बन रहे। तो मतलब दिस इज़ नॉट एज ईजी एज वन कैन थिंक। इसके लिए ये इतना आसान काम नहीं है। तो बेस्ट तो वही है कहानी कि भी जहाँ पे कोई गलती कोताही हुई है उसको दोनों तरफ से मसाले कर नज़रसानी की जाए, देखा जाए और वापस जो है मामलात को असल जगह पे उसकी रूटीन पे लेकर के आया जाए। और मैं ये साथ ही आपको ये भी बता दूं कि अमेरिकन भी किसी हद तक समझते हैं कि खान साहब वापस एक इलेक्शन मोड में हैं और उसके अंदर ये जो बातें हो रही हैं ये इलेक्शन की गर्मा गर्मी की बातें हैं। आई एम श्योर दे अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि ही इज़ नॉट एंटी अमेरिका। कुछ जो सर्टन एक्सपीरियंसेस बंदा टाइम के अंदर करता है, करने के बाद उसको फिर समझ में आती है कि एक्सपीरियंस के अंदर मुझे क्या फ़ायदा क्या नुकसान, तो उसको बाद में देखा जा सकता है ना उसको। अच्छा ताहिर जावेद साहब, दो आखिरी छोटे छोटे सवाल। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तादाद में रहती है, अमेरिकन डायस्पोरा इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहा है? परेशान कुन सूरत हाल के तौर पर, या उन्हें उम्मीद है कि मामला हैंडल हो जाएंगे? वो क्या करने वाला? अमेरिका के अंदर कोई भी अमेरिकन पाकिस्तानी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप अमेरिका से बेहतरी की तरफ ना जाएं। कंसर्न है जो बिजनेसमैन जिनके दोनों तरफ बिजनेसेस हैं वो कंसर्न है, उनके अपने इसके ऊपर कंसर्न्स हैं। मुझे भी कॉलें आई लोगों की कि जी इसके ऊपर कोई सबको मिल के कुछ करना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है ये डिस्टेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। आई मीन मैं अमेरिका में रहता हूँ, बहुत सारे और लोग हैं जिनको अमेरिका ने बहुत कुछ दिया है। हमारी पाकिस्तान के साथ भी एक मोहब्बत प्यार अपनी जगह मौजूद है, हम यहाँ पे पले बड़े और उसके, तो ये एक नेचुरल एक है। हम नहीं चाहेंगे, कोई भी पाकिस्तानी अमेरिकन नहीं चाहेगा कि ये रिलेशनशिप का रुख चेंज हो। हम इसको स्ट्रेंथन होना देखना चाहते हैं।